Hello everyone. So today I am going to discuss about migration to cloud from on-prem. In the last video I had discussed about assessment approach before doing any migration. So one of the outcome of assessment is the application treatment plan. So there are certain application in your on-premise and you want to suggest a treatment plan for each and every application and you have done the assessment for the same, right? So today we are going to discuss all these treatment plans, which we also call as 7 hours of migration. So let's get started. So first is your rehost. अब rehost को हम lift and shift भी कहते हैं. बेसिकली जो भी आपका ऑन प्रेम में सर्वर है या वीएम है, राइट? ऑन प्रेम फिजिकल सर्वर और वीएम, उसको आपने उठा के क्लाउड में डाल दिया, सेम एज इट इज, राइट? तो उस सिनेरियो को हम कहते हैं, यहाँ से उठाया लिफ्ट एंड यहाँ पे डाला शिफ्ट. तो दिस इज वन ऑफ द ट्रीटमेंट प्लान फॉर योर माइग्रेशन. तो सिंपल एक सपोज करो एक ऑर्गेनाइजेशन है विच हैज़ legacy applications running on on-prem Windows servers and they want to migrate these virtual machines to Azure with no changes to application and their underlying OS, right? So in this case, this lift and shift strategy will work, which is we also call as rehost. Now second is replatform. Now one of the outcome from assessment is that you have Windows servers that are running on older version. You might consider move upgrading the window version to a newer version, right? So this is one of the example of free platform. In that case, you have to do the in-place upgrade of that window version and then you have to do the migration. So you have updated the underlying OS of the on-prem servers. So this is the example of replatforming, right? You are updating the platform of the current application, or maybe take an example, a particular application who is running an on-prem SQL database on a virtual uh, machine, right? इसमें that on-prem application has to manage the users, right? Has to manage the auto scaling of the database. So basically, then the capacity management, patch management, right? So these are some of the operational overheads. So this organization aims to reduce this management overhead or operational overhead. So they have replatformed the database to a managed database on Azure, right? तो बेसिकली आपका ऑन प्रेम पे वर्चुअल मशीन पे डेटाबेस चल रहा था, उस पे आप उसको आप मैनेज कर रहे थे. वट एवर दी ऑपरेशनल tasks are there, you are doing it by yourself. Now you have replatform it to a managed service on database. तो इस केस में यहाँ पे एडवांटेज ये रहेगा कि आपका मैनेजमेंट ओवरहेड बच जाएगा. तो पैचिंग हो गई, जो भी मैंने यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताई, लाइक पैचिंग, कैपेसिटी मैनेजमेंट, ऑटो स्केलिंग, यूजर not user management, this will be the responsibility of your uh, hyperscaler, cloud hyperscaler. In this case, it's Azure.
right? तो this is also one of the scenario of replatform. तो अभी तक हमने rehost समझ लिया है, replatform समझ लिया है, then third is repurchase. तो repurchase में क्या होता है basically, take an scenario where an application is using an on-premise CRM, right? On-premise CRM which their IT team has developed. अब market में there are a lot of CRM tools that have come in like Salesforce, right? Which is a SaaS offering. So instead of migrating it this on-prem CRM application to cloud, one of the outcome is that you just subscribe to this SaaS offering and you do not migrate this, right? So this strategy is your repurchase. Then one of the very important R is refactoring, which we also call as re-architect. So suppose your application is uh, a monolithic application, and you want to simplify the architecture of your monolithic application. So you decide to follow a microservice architecture, right? So you will be using uh, Azure services like ACS, Azure Container Services, right? Or maybe serverless offerings like functions and all. So you are completely changing the architecture of the application and you are modifying the application and re-architecting it to a micro architecture. Take an example, आपका ऑन प्रेम में एक एप्लीकेशन है जिसकी, टेक एन एग्जांपल ऑफ एन ई कॉमर्स एप्लीकेशन, राइट? जिसमें यहाँ पे प्रोडक्ट फीचर्स के बारे में बात होगी, इस एप्लीकेशन की कंपोनेंट्स हैं। देन यहाँ पे वो प्रोडक्ट चेकआउट का एक एप्लीकेशन है। देन यहाँ पे शिपिंग की एक एप्लीकेशन है। देन यहाँ पे पेमेंट की एक एप्लीकेशन है। एंड ऑल दीज आर होस्टेड ऑन अ सिंगल वर्चुअल मशीन। तो ये आपका एक मोनोलिथिक आर्किटेक्चर होता है। अब आपने क्या किया, इसको ब्रोक डाउन करके माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर क्रिएट किया, जिसमें आपने प्रोडक्ट एप्लीकेशन सेपरेट कर दी, राइट? शिपिंग एप्लीकेशन सेपरेट कर दी, पेमेंट एप्लीकेशन सेपरेट कर दी। तो ये एक एग्जांपल हो गया आपका रिफैक्टरिंग का। अब इसका एडवांटेज क्या होता है इस केस में, मोनोलिथिक केस में? आपको, अगर आपको ऑटो स्केल करना है तो आपका ये सारी एप्लीकेशंस वुड हैव बीन ऑटो स्केल्ड, राइट? बट माइक्रो सर्विस के केस में यू कुड हैव ऑटो स्केल्ड ओनली से प्रोडक्ट फीचर एप्लीकेशन, राइट? और प्रोडक्ट लिस्ट एप्लीकेशन। तो इसका ये फ़ायदा हो जाता है, प्लस आपका कैपेसिटी मैनेजमेंट अच्छे से हो जाता है। इस केस में आपको पूरा का पूरा हार्डवेयर परचेज करना पड़ेगा, राइट? बट अगर आप माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर फॉलो करेंगे, देन से प्रोडक्ट फीचर आपकी एप्लीकेशन है, वंस यूज़र चेकआउट से अ स्मार्टफोन, तो एक मैसेज ट्रिगर होगा, राइट? And then the shipping application comes into play. So it's a completely serverless architecture
In case of say monolithic microservice architecture, it will save you on on your cost management and everything. So it's a very big topic. I will creating a series of uh, videos where we will be discussing about serverless architecture, serverless offering in the later videos. So nutshell में I just want to tell there is a refactoring treatment as well, which is very complex and it requires careful planning, right? Both from the infra team and both from the from the application team. Then fifth is your retire. अब आपके ऑन प्रेम में कुछ ऐसी एप्लीकेशंस होंगी जो विच यू आर नॉट यूजिंग, राइट? से आप का एक मॉनिटरिंग एप्लीकेशन है जो आपके सारे इन्वायरमेंट को मॉनिटर कर रही है, राइट? उसको आपने क्लाउड पे माइग्रेशन करना है। क्लाउड में तो आप एज्योर मॉनिटर यूज करना चाह रहे हो, तो doesn't make sense to migrate this particular application, तो you have to retire it. आपकी एक मशीन है जिसमें आपने ESXi, आपका VMware इन्वायरमेंट है, इसमें आपने ESXi वी सेंटर इंस्टॉल किया हुआ है, सपोज करो। अब इसको आप माइग्रेट क्यों करोगे? यू जस्ट retire it and do not migrate to Azure. So this is your fifth treatment plan. Sixth is your retain. Retain में क्या होता है? Then there are certain application that are on premise which are not ready to migrate, and जब मैं ये कह रहा हूँ नॉट रेडी टू माइग्रेट, इसका रीज़न ये हो सकता है कि देयर माइट बी सम compliance compliance issue, or maybe application is not compatible to run to cloud. तो उस केस में हम रिटेन ट्रीटमेंट यूज करते हैं। एंड लास्ट इज योर रीलोकेट। रीलोकेट बेसिकली सपोज करो आपके ऑन प्रेम में वी एम वेयर इन्वायरमेंट चल रहा है, ठीक है? वी एम वेयर, आप वी एम वेयर टू वी एम वेयर पे ही जाना चाहते हो, माइग्रेट करना चाहते हो, एंड टेक एडवांटेज ऑफ क्लाउड सर्विस। तो उस केस में आप माइग्रेशन करोगे फ्रॉम ऑन प्रेम टू योर से Azure VMware service, राइट? VMware on Azure। तो उस पे आप क्या कर सकते हो? आपका हाइपरवाइजर तो सेम ही रह रहा है, बट आप Azure की सर्विसेज जैसे AKS Azure कंटेनर सर्विस, देन Azure मॉनिटर, इन सर्विसेज का आप एडवांटेज ले पा रहे हो। तो यू आर जस्ट relocating from your on-prem to an AVS environment, and you can leverage the benefits of Azure services by running your on-prem environment on AVS. So this strategy we call as relocate. So what are the 7 Rs? It's rehost, replatform, repurchase, refactoring, retire, retain, बहुत ही and practical scenario देता हूँ, and I will try to explain you the approach of migration, right? आपने असेसमेंट की, असेसमेंट से आपको पता लगा कि भाई मेरे को कुछ सर्वर को रीहोस्ट कराना है, कुछ को मेरे को रीप्लेटफॉर्म करना है, ठीक है? और मेरे इन्वायरमेंट में वर्चुअल मशीन्स हैं, सीक्वल डेटाबेसेस हैं, ठीक? ये आपको असेसमेंट से आउटकम मिल गया। तो आप कैसे करोगे, राइट? तो हम माइग्रेशन की अप्रोच डिस्कस करते हैं। तो पहला तो फेज यही है कि भाई आपको इस डेटा को स्टडी करना है, एंड यू हैव टू प्लान योर माइग्रेशन, ठीक है? अब
प्लानिंग में क्या आ जाएगा, ठीक है। तो मैं ऑन प्रेम की नेटवर्क रिक्वायरमेंट को समझना पड़ेगा, सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट को समझना पड़ेगा, ठीक है। क्या एग्जिस्टिंग नेटवर्क पॉलिसीज़ एंड सिक्योरिटी पॉलिसीज़ हैं। अब फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी की मैं बात करूं तो सपोज करो एक एक्स एप्लीकेशन है जो पब्लिक फेसिंग है, राइट। एंड उसमें इस तरह के अटैक्स आते हैं, सीक्वल इंजेक्शन अटैक्स, ठीक है। तो उस केस में आपको ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी, क्या मेरी सिक्योरिटी सर्विसेज कॉन्फ़िगर्ड है, राइट। ताकि जो ऑन प्रेम में मेरा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड और नेटवर्क स्टैंडर्ड हम फॉलो कर रहे हैं, वी कैन फॉलो द सेम स्टैंडर्ड ऑन एश्योर, ठीक है। दूसरा, आपको मूव ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे। अब मूव ग्रुप्स मेरे क्या हो गए कि भाई मेरी एक्स एप्लीकेशन इज़ वेरी क्रिटिकल, लो क्रिटिकल, मीडियम क्रिटिकल। तो ये आपको ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे एंड यू हैव टू शेड्यूल योर माइग्रेशन अकॉर्डिंग टू द ग्रुप्स, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप है दैट यू प्लान योर माइग्रेशन, यू अंडरस्टैंड योर एग्जिस्टिंग सेटअप एंड ट्राई टू रेप्लिकेट दैट एग्जिस्टिंग सेटअप टू एश्योर। नाउ कुछ, जैसे हमने हमारा यूज़ केस है कि कुछ सर्वर हमारे री प्लेटफॉर्म करने हैं। अब री प्लेटफॉर्म से मेरे को ओएस री प्लेटफॉर्म करना है, मतलब ओएस का मेरा वर्जन इज़ 2.2012 विंडोज़ एंड आई वांट टू री प्लेटफॉर्म इट टू 2019। तो आपको एक चेक भी करना पड़ेगा कि भाई मेरी एप्लीकेशन इज़ compatible with newer version, राइट। ऐसा भी सिनेरियो हो सकता है कि भाई वो एप्लीकेशन ही आपकी कंपैटिबल ना हो, राइट। तो ये आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। उसके लिए आप एक टेस्ट इन्वायरमेंट पे देख लो नया वर्जन डाल के एंड एप्लीकेशन डिपेंडेंसीज पैकेजेस डाल के यू ट्राई टू रन एंड जज द परफॉर्मेंस, ठीक है। तो ये भी आपको करना पड़ेगा। फिर आपको देखना पड़ेगा कि भाई मेरी आईपी रिक्वायरमेंट, ऑथेंटिकेशन रिक्वायरमेंट, ये अभी एग्जिस्टिंग सेटअप में कैसा चल रहा है, ठीक है। एग्जिस्टिंग में से आपका आईपी रिक्वायरमेंट ये है कि भाई जो मेरे अभी पब्लिक आईपी यूज़ हो रहे हैं वही मेरे एज्योर पे यूज़ हो, राइट। सो यू हैव टू सी दैट रिक्वायरमेंट एंड यू हैव टू replicate it into Azure, ठीक है। उसके लिए यू हैव टू अपडेट योर डीएनएस रिकॉर्ड जब आप माइग्रेट करोगे, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, तो ये सारी प्लानिंग होती है एंड विद केयरफुल प्लानिंग यू हैव टू स्टार्ट योर माइग्रेशन एक्टिविटी। जब आपने प्लानिंग कर दी, सेकंड आप स्टार्ट योर माइग्रेशन। अब माइग्रेशन स्टार्ट करने के लिए वी नीड सम टूल, राइट। अब टूल एज्योर के केस में होता है एज्योर माइग्रेट, दूसरा होता है आपका एज्योर साइट रिकवरी। इससे आप क्या कर सकते हो, जो भी मेरे ऑन प्रेम सर्वर्स हैं यू कैन स्टार्ट रेप्लिकेटिंग योर ऑन प्रेम सर्वर्स टू क्लाउड, ठीक है। तो ये आपका एक बहुत क्रिटिकल स्टेप है, टूल डिप्लॉयमेंट। once the tool deployment is done, you will start replicating your servers to Azure. Then you will reserve some of the IPs for the machines to be migrated on Azure, right? IP रिजर्व करोगे आप। फिर आपको ये भी देखना है कि डेटाबेस को मेरे को माइग्रेट करना है तो मेरे को उसको शट डाउन करना पड़ेगा, अदरवाइज शट डाउन नहीं करोगे तो कुछ इनकन्सिस्टेंसी हो जाएगी डेटा पे, ठीक है। तो यू हैव टू shut down your database and then you have to migrate your database,
right? Once your servers are migrate, you will start testing the migration. ठीक है, तो अब Azure पे आपके सर्वर्स आ गए, you will start activities like test and failover, right? तो once the migration is done, you will start doing the testing and all, and then you will cut over post that testing. तो आपका सारा वर्कलोड जो ऑन प्रेम में था वो क्लाउड पे आ गया.